A very good morning to all of you. Welcome to the computer class. So, students, today we are going to start with a new chapter, that is Google Apps. And in this particular chapter, we will start with introduction to Google. After that, we will talk about how can we surf and research on Google, and how can we stay in touch using Google Apps, and how can we organize our stuff using Google Apps, how can we work smartly, how can we use Google Apps for watching, listening and playing, and also we will lastly talk about the Google devices. So let's get started with the first topic, that is introduction to Google. So Google, www.google.com, is an American public corporation specializing in internet related services and products. So students, ऑल ऑफ़ यू नो दैट गूगल इज़ बेसिकली अ सर्च इंजन. ठीक है, हम गूगल को सर्च इंजन की तरह से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं. सो गूगल बेसिकली एक अमेरिकन पब्लिक कॉरपोरेशन है जो कि आपको इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है और एज वेल एज आपको कुछ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है. So Google began as a research project in January 1996 by Larry Page and Sergey Brin, two PhD students at Stanford University. As per the project, one could zoom in close enough to read the license plates on cars on the street. So जो हम Google है बेसिकली एक रिसर्च प्रोजेक्ट था जो कि 1996 में लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, जो कि ये दो पीएचडी के स्टूडेंट्स से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया था. सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का पर्पज़ ये था कि कैसे हम जो भी कार्स के नंबर प्लेट्स होते हैं उनको हम जूम इन करके पढ़ सके, जो भी ये कार्स स्ट्रीट के ऊपर आपकी रन कर रही होती हैं. ओके, सो नाउ today, Google is mainly used as a search engine, and this probably remains one of the most visible aspects of Google on the web. तो all of us know कि Google एक search engine है, and this is one of the most famous thing about Google. But Google is much more than the search engine. ठीक है, it has developed a number of web-based applications that are collectively known as Google Apps. So जो Google है, it is just not a search engine, but Google ने बहुत सारी ऐसी web-based applications को develop किया है जिनको हम Google Apps भी बोल देते हैं. So students, after this we'll talk about Google Apps, that what are Google Apps. Now, there are many applications related to Google like Google Search, Google Accounts, Gmail accounts, Google Docs, etc. All the applications and services of Google are called Google Apps. ठीक है, सो हमारे पास बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि गूगल ने हमें प्रोवाइड करी हैं, लाइक गूगल सर्च, गूगल अकाउंट्स, जीमेल अकाउंट्स, गूगल डॉक्स, एंड ऑल दीज एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज आर नोन एज गूगल एप्स. सो जीमेल की अगर हम बात करते हैं, सो जीमेल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ गूगल एप्स विच इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स. सो इन डे टू डे लाइफ हम जीमेल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड ऑल ऑफ़ यू नो कि जो जीमेल है दैट इज़ यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स. To gain access to all the Google services, you must set up a Gmail account. Gmail becomes your point of entry to Google Apps. You can use any Google app by using Gmail user ID and password. So students, it's very important, अगर आपको Google की services, जितनी भी Google services या applications provide करता है, अगर आपको उनका access चाहिए, if you want to use them, so first of all, you should set up an Gmail account. ठीक है, एंड वंस यू गेट एन जीमेल अकाउंट, आफ्टर दैट यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ गूगल एप्स. एंड हाउ कैन यू एक्सेस ऑल दीज गूगल एप्स? जस्ट बाय यूजिंग योर जीमेल यूज़र आईडी एंड पासवर्ड. ठीक है, तो हमें अगर कोई भी गूगल की सर्विस या जीमेल या फिर हमें कोई भी गूगल एप्स को यूज़ करना है तो हमें एक जीमेल अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा, एंड आफ्टर यूजिंग user ID and password, we can use and access all these Google apps very easily. Okay, so now the next topic is about cloud computing. So you must have heard about this particular name, that is cloud computing. चलिए पढ़ते हैं कि cloud computing होती क्या है. So cloud computing means storing and accessing data and programs over the internet rather than in the hard drive of your computer. So students, अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में नहीं पता, सो अगर आपने गूगल ड्राइव या फिर गूगल पिक्स के बारे में सुना है, सो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. सो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है
कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर फाइल, डेटा या प्रोग्राम्स को ऑनलाइन ही स्टोर करना है एज वेल एज उन्हें ऑनलाइन ही एक्सेस करना है, तो उसको हम बोल देते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। सो जनरली क्या होता था पहले कि हमें अगर कोई भी प्रोग्राम को या डेटा को सेव करना होता था तो हम अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव में उसको सेव करते थे। बट बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अब हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा एंड प्रोग्राम्स को क्लाउड के ऊपर स्टोर कर सकते हैं एंड वी कैन एक्सेस इट एज वेल। सो दिस इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। नाउ Google apps are totally based off cloud computing. So as I told you, so जो Google apps हैं ये बिल्कुल cloud computing के ऊपर ही based हैं. So once you are using Google apps, you will enjoy the ability to access your files and software from anywhere you have access to the web and cloud computing. ठीक है, तो अगर हमें सपोज़ कीजिए कि अगर हमें गूगल ऐप्स को यूज़ करना है या फिर हम गूगल ऐप्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, सो फॉर यूजिंग गूगल ऐप्स वी ओनली नीड वेब एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक, तो हम कहीं से भी कैसे भी करके हम क्या कर सकते हैं, गूगल ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस एनी काइंड ऑफ फाइल, वी कैन एक्सेस एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज़ द इंटरनेट कनेक्शन. Now, so in traditional computing, when you want to start a new application software, you will need to install it on your computer before using it. तो पहले जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता था, अगर हमें कोई भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करना होता था, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, पहले उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता था. Now, to use an application that is run on the cloud, all that is needed to be done is to log in with the username and password, customize it and start using it. ओके, सो अगर सपोज़ कीजिए कि कोई ऐसी एप्लीकेशन या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी क्लाउड के ऊपर प्रेजेंट है, सो अब आपको अगर उसको एक्सेस करना है एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आपको सिर्फ एक यूज़र नेम चाहिए और एक पासवर्ड चाहिए. देन यू कैन यूज़ इट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. ओके, सो फॉर दिस यू नीड अ वेब ब्राउज़र एंड एन इंटरनेट कनेक्शन. ठीक है, तो इनको यूज़ करने के लिए आपको एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एंड ऑल्सो यू विल नीड एन इंटरनेट कनेक्शन. सो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन हम क्लाउड के ऊपर काम नहीं कर सकते. ठीक है, सो नाउ विल टॉक अबाउट सर्फिंग एंड रिसर्च. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट कि हाउ कैन वी सर्फ एंड रिसर्च ओवर द इंटरनेट. सो here we have Google Chrome. So Google Chrome is a full-featured web browser software designed by Google. A web browser is a software application that people use in order to view web pages on the internet. It loads very fast and runs multiple pages. So all of us know दैट वॉट इज़ गूगल क्रोम. सो गूगल क्रोम आप सबको पता है कि एक टाइप का वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जो कि गूगल ने डिज़ाइन किया है. अब ये वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक वेब ब्राउज़र बेसिकली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो कोई भी यूज़र यूज़ कर सकता है अगर उन्हें वेब पेजेस को देखना है इंटरनेट के ऊपर. ठीक है, सो इट लोड्स वेरी फास्ट एंड इट कैन रन मल्टीपल पेजेस. Now, the Google apps run particularly well in this browser. ठीक है, तो आपका जो Google Chrome है that has been designed by Google, so that's the reason कि अगर आपको कोई भी Google apps को रन करना है तो वो Google Chrome पर बहुत अच्छे से रन हो जाती हैं. So Google Chrome is free. It is open source browser and can be found online at the web address that is http www.google.com/chrome. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एड्रेस से हम इस पर्टिकुलर क्रोम को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. वी कैन यूज़ दिस. ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग ऐप दैट इज़ गूगल मैप्स. So Google Maps is a web mapping service developed by Google. So Google Maps, as the name is suggesting, basically एक mapping service है, web based mapping service है जो कि Google ने develop करी है. It enables you to display up-to-date maps by searching for an address or place of interest, such as an airport, a hotel or historical site. तो basically अगर हम बात करते हैं Google Maps की, तो Google Maps की हेल्प से हम
कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन का मैप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं. वी कैन लोकेट द पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्टिकुलर एड्रेस. लाइक सपोज करते हैं कि हम लाइक वी आर गोइंग टू दिल्ली एंड वी डोंट नो, अगर हमें इंडिया गेट जाना है और हमें नहीं पता कि इंडिया गेट कहाँ पर है, एंड यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम कुरुक्षेत्र. ओके, सो अब आप क्या करेंगे, यू विल जस्ट go to the Google Maps, you will enter your starting point and you will enter your destination. So Google Maps basically आपको नेविगेशन दिखाएगा कि आपको अपने थ्रू आउट द वे आपको कहाँ पर टर्न लेना है, आपको कितना आगे चलना है. सो इट विल गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी एंड फाइनली you can reach your destination very easily. Okay students, now while going somewhere, Google Maps provide directions when a user enters a starting and destination point. So as I told you कि अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो Google Maps आपको directions provide करते हैं अगर आपने एक starting और destination point वहाँ पर enter किया है. So it has GPS. Now what is GPS? So GPS stands for Global Positioning System, which is used to determine the current location of a user, eliminating the need for the user to enter the starting point and enabling the website to recommend nearby places of interest. So जो GPS होता है, GPS का बेसिकली पर्पस क्या है कि वो आपकी करंट लोकेशन को पहले डिटरमाइन करता है, वेदर आपने उसमें स्टार्टिंग पॉइंट कुछ एंटर किया है या नहीं. बेसिकली जो जीपीएस होता है वो आपको लोकेट करता है दैट वेयर आर यू राइट नाउ, और उसके बेसिस पर वो आपको जो भी नियर बाय प्लेसेस में काफ़ी बड़ी बड़ी जो लोकेशंस होती हैं या फिर जो प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो आपको दिखाता है. सो नाउ इट शोज रियल टाइम जीपीएस नेविगेशन, ट्रैफिक, ट्रांजिट, डिटेल्स अबाउट मिलियंस ऑफ प्लेसेस. तो गूगल मैप्स की हेल्प से हम बेसिकली नेविगेट कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट कि हमारे जिस वे पर है हम वहाँ पे कितना ट्रैफिक है. अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो वो आपको कोई और लोकेशन बता देगा कि आप दूसरे रास्ते से जाइए. ठीक है, सो इट कैन टेल यू अबाउट मैनी थिंग्स. आफ्टर दिस विल टॉक अबाउट गूगल ट्रांसलेट. So Google Translate, as the name is suggesting, so basically Google Translate is a free online language translation service which instantly translates text into other languages. Okay, so जो Google Translate है basically a free online language translation service है जो instantly किसी भी text को दूसरी language में change कर देता है. Now, this translator supports languages like English, Arabic, Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, French, German, Greek, Hindi, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Romanian, Russian, Spanish and Swedish. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितनी भी लैंग्वेजेस मैंने आपको बताई हैं तो ये पर्टिकुलर लैंग्वेजेस आपका ट्रांसलेटर सपोर्ट करता है. सो the Google Translate app for mobile lets you instantly visually translate printed text. Just open the app, click on the camera and point it at the text you need to translate. It can be a street sign, it can be an ingredient list, instruction manual, etc. You will see the text transforming live on your screen into the other language. So students, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, like suppose करते हैं like if you are traveling to some another country and you don't know the language of that particular country. So आप क्या कर सकते हो, you just download the Google Translate app on your phone. ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर ऐप को आप ओपन करोगे और उस पर्टिकुलर ऐप में आपके पास कैमरा होता है. सो यू विल जस्ट पॉइंट आउट योर कैमरा टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट जो आपको दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है. तो जैसे ही वो कैमरा क्या उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पर पॉइंट आउट होता है तो आपका क्या होगा, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट चेंज होकर आपकी लैंग्वेज में आपको विजिबल हो जाएगा. ठीक है, सो हेयर यू कैन सी एक आपको एग्जाम्पल गिवन है. ये जो टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है ये डिफरेंट लैंग्वेज में है विच इज़ नॉट रीडेबल बाय द यूज़र. ठीक है, तो यूज़र ने क्या किया, उसको रीडेबल बनाने के लिए सो दैट ही गेट्स टू नो व्हाट इज़ रिटन ऑन दिस पर्टिकुलर. ठीक है, तो वो उसने क्या किया, गूगल ऐप्स का यूज़ करके उसका एक कैमरा को ऑन किया एंड थ्रू दैट कैमरा वो पर्टिकुलर टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया यूज़र अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में एंड नाउ द यूज़र कैन ईजिली सी व्हाट इट इज़ रिटन. Okay, so this was all about Google Translate.
Okay students, so we will continue this particular chapter in the next class. So that's all for now. Thank you so much.